Okay, so our today's topic is function. Okay, function. So before starting the function, just understand why function required. Okay, चलिए एक छोटा सा केस समझते हैं, केस स्टडी समझते हैं. Suppose I require to add two numbers. ठीक है, simply two numbers. So I am taking a comma b equal to 10 comma 20. ठीक, and I do print a plus b without नहीं, ठीक है, and I'm performing here addition. The same value, on the same value I required some subtraction. On the same value I required multiplication. And n number of operations. Suppose I want to print square, division, and so many operations can be there. ठीक है, so happily okay, no problem at all. ठीक है, it will print my output. ठीक, the next moment I required same operation on some another values, like I required on some other value. So then I have changed my value and I doing the same operations. The next moment I required the same operation on some other values. So it will working or not? It will work or not? Yes, definitely work. No problem at all. Okay, and output we get. ठीक, no problem. Then then what happened with this code? The something is common in it. This code. This code. Every time I change the value, no problem at all. But I need to write the same code. This code is repeated how many times? Three times. If more values I required, like 10,000, or some other value I required, then again I repeat this code. ठीक है, unnecessary, the length of the code is increased for the same purpose, for the same task. Is it clear? ठीक है, so this is the problem. मीन्स आई वॉन्ट टू रीयूज दिस कोड. भाई मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा कोड है, जो मैंने 10 और 20 के लिए लिखा है, क्या यही कोड मेरा 100 और 200 के लिए काम नहीं कर सकता? कि यही कोड मेरा 1000 और 2000 के लिए काम नहीं कर सकता? तो आई नीड टू राइट सम टेक्नोलॉजी, सम कंसेप्ट, जो मैं इस कोड को, जो एक बार जो मैंने कोड लिखा है, इसी को मैं रीयूज कर सकूं. दैट दैट द सॉल्यूशन इज फंक्शन. Solution is function. Clear? ठीक है, and how can we do this? Let me show you. So what I need to do, I need to define a function. Just we are getting a basic idea first, then we will go through with this def. And I'm taking a function name like calci, like calculation. ठीक है, and I'm taking two parameters here, and I'm performing the same code I'm performing. Now what happened? I call this function
and I'm passing 10 comma 10 comma 20. Next time I required what value? 100 comma 200. Next time I required 1000 comma 2000. Next time maybe I required 10,000 comma 20,000 maybe. No need to write this one. So what happened now? Same task, same task, but the code is repeated or not? Not repeated. What happened there? This is called the some calling. This is called some calling. We create a function here and we pass some value inside the function, 10 comma 20, 100 comma 200, any number of time we can call this function. Any other value you required, it's happily possible, like you require I1 and 21, it perform the same operations. So what happened here? I write this code once and use many number of times. So this is called reusability. This is called reusability. Okay? So this is the requirement of the function. Then we can reuse. Maybe some some 50,000 lines there. Some code lines there. 50,000 code lines. After it, I again require this functionality. So simply what I can do, calc, and I pass some value and I can perform. Okay? So wherever you require the function, you can call without writing the same code again and again. उस कोड को बार बार ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, सीधे उस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं. ठीक है? So I think the basic idea of the function you get, okay, only just a basic idea that why function is required, okay, to reusability of the code. Now move to the function in depth. And what is the function? Function is block of code we can call any number of time. ठीक है? तो हमने क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया और उस ब्लॉक को हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बिकॉज दैट ब्लॉक हैज सम नेम. ठीक है? जैसे यहां पे अभी देखा आपने, इस ब्लॉक का क्या नाम है, कैल्सी. ठीक है? So Python support how many types of function? Python support mainly two types of function. How many types of function? Two types of function. The functions are inbuilt function, inbuilt function, inbuilt function, and user defined function. So we have a two type of function, inbuilt function and user defined function. तो इनबिल्ट फंक्शन तो अभी तक हमने पढ़े हैं. इनबिल्ट फंक्शन हमारे वो होते हैं जो जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं उसी के साथ हमें बहुत सारे फंक्शंस मिले थे जो हमने यूज भी किए हैं. जैसे एक हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया था, याद है? हमने इनपुट फंक्शन यूज किया था. ठीक है? हमने टाइप फंक्शन यूज किया था, हमने आईडी फंक्शन यूज किया था. ठीक है? हमने यहाँ पर लेन फंक्शन यूज किया था. ठीक है? ये सारे हमारे क्या हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं. जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ये उसी के साथ हमें मिलते हैं. ठीक है? तो ये एक तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लैंग्वेज लेवल सपोर्ट. क्या बताया था? लैंग्वेज लेवल सपोर्ट. लैंग्वेज लेवल सपोर्ट यानी कि ये अगर फंक्शन हमारे पास पहले से डिफाइंड हैं, पहले से हमें मिले हुए हैं, तो फायदा क्या होगा कि हमें लैंग्वेज की तरफ से, पाइथन लैंग्वेज की तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है कि भाई आपको इसके लिए कोई फंक्शन नहीं बनाना, पहले से बना हुआ फंक्शन है, आप इसको सिर्फ क्या करते हैं, यूज करते हैं.
और इस प्रिंट फंक्शन को आपने कितनी बार यूज किया, एनी नंबर ऑफ टाइम आप यूज किया आपने, ठीक है। इनपुट फंक्शन को आपने कितनी बार यूज किया, टाइप जितनी बार आपकी रिक्वायरमेंट थी उतनी बार आपने इन फंक्शंस को यूज किया, ठीक है। जैसे मैंने एक आपको बताया था कि लेट सपोज यू वांट टू परचेज ए मोबाइल, तो मोबाइल परचेज करने के लिए टू क्रिएट योर ओन कंपनी for purchasing a mobile, or just go to the market and buy a mobile according to your requirement. So simply buy a mobile according to your requirement. For a single unit, to create your own company, create your own manufacturing is not a good choice. तो ये क्या हुआ, बिकॉज जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पहले से आपके पास चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो हमारी चीजें हैं वो पाइथन हमें प्रोवाइड कराता है, एंड पाइथन हैज ए वेरी रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी, ओके। दिस इज द फीचर ऑफ द पाइथन, that python have a very rich set of library. That library, what library have the inbuilt function, library what library has the inbuilt function in the next more one or two class we will discuss about it in detail, okay. So mainly we are discussing here user defined function, ठीक है, the function defined by the user according to their requirement. For example, that Kelsey function, it is not a inbuilt function, ठीक है। if I you know if I try what, if I try like this, I just call this Kelsey function, I comment the my definition and everything. I just call this function, immediately generate error. कह रहा कैल्सी इज व्हाट नॉट डिफाइंड, पहले से डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम इसी की जगह कोई प्रिंट फंक्शन यूज करें एंड वी परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है, वी जस्ट प्रिंट सम वैल्यू लाइक आई एम प्रिंटिंग हेलो, ठीक है, तो इस पे कोई एरर नहीं देता, इस पे प्रिंट क्या कर देता है, हेलो प्रिंट कर देता है, बिकॉज somewhere this print function is defined, like I defined Kelsey function. So somewhere this print function is defined, and we are what we are doing, we are just using it whenever we require. Is it clear? So a or b I passed, just like hello passed is there, a or b is here, a and b I passed na, a and b some variable, just like I have passed the hello, and we get some output on the screen. Is it clear? So the user defined function is what function defined by the user according to their requirement. Inbuilt function are those which are predefined function. Inbuilt function we can say library function, what we can say inbuilt function, predefined function, or library function, which are already with the पाइथन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑलरेडी विद द पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन हम वो हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ लर्न द सिंटैक्स, व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इट, जस्ट देखिए, inside the function, if I'm talking about any syntax, so we required def, we required def keyword. Def is what? Keyword. Okay, def is a keyword. Then we write function name. Then we write what? Function name. Colon, because it is a block, colon, and after the colon we required our function body, we can say, or we can say our business logic, it is alternative names, we can say function statements, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन की बॉडी हमने दे दी, फंक्शन स्टेटमेंट्स हमने दे दी, एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज सम रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न सम वैल्यू, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज देयर, पैरामीटर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स ऑफ function, that what is the highly required things, def compulsory, we cannot avoid this. Function name,
any name. This is def is a keyword, function name defined by the user according to their requirement. Parameters and return statements are optional. ठीक है, parameters and return statements are optional, right? If you require return statement, later we discuss spelling, ठीक है, later we discuss कि when we require the return statement, when we require the parameters. So just we have def is the keyword, function name, any name. Just remember the identifier rules, remember rules of identifiers, like must start with character, ठीक है, नो स्पेशल सिंबल इज अलाउडेड एक्सेप्ट अंडर स्कोर, दीज पॉइंट्स आर रिमेंबर. सो आइडेंटिफायर्स के जो हमारे रूल्स थे, वही रूल्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं फंक्शन का नाम रखने के लिए. और दूसरी चीज, पैरामीटर ऑप्शनल है, रिटर्न एक कीवर्ड है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट हमारी कैसी है, ऑप्शनल है. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है, दिस इज सम ऑप्शनल स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? ठीक है, सो लेट्स डू वन एग्जांपल. I want to I want to just print a greeting. I mean to say just a good evening to all. Just a good evening. Okay. So we required a def keyword. Okay, and we required a function name. So I just say wish, and I want to print what? Print. The body of the function is good evening to all. If I run this code, output, can we get the output or not? No, we did not get the output because we just defined the function, but we not call it. So without calling, we did not get the output. ठीक है, देखिए, this is the function block, this is the calling, function calling. कॉलिंग का मतलब होता है यूज करना, जब आप उसे कॉल नहीं करेंगे तो यूज नहीं होगा. एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फंक्शन बॉडी, ये विदाउट इंटेंडेशन है, आउटसाइड द पार्ट ऑफ द फंक्शन बॉडी है. इफ आई डू F5 एंड यू कैन गेट द गुड इवनिंग टू ऑल. ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम, you can call this function. Just write once, use many. ठीक है, write once, use many. ठीक है, क्लियर है? नाउ what is the requirement of the parameter here? Just we discuss. Now the next requirement is, suppose I want to wish the person by their name. ठीक है, so here I am taking a variable name, any variable you can take name. ठीक है, so I am printing here good evening, यहाँ पर नेम मैंने प्रिंट करा दिया, डॉट फॉर्मेट, एंड आई एम प्रोवाइडिंग द नेम. ठीक है, but what happened here, if I use parameter inside the function, I must pass some value, or I say I must pass argument. So I am taking here Adit. If I run this, good evening, any number of time I can call. ठीक है, I also can input the name by user. भाई आप नेम इनपुट करो, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं विश फंक्शन कॉल एंड वी पासिंग. रन दिस, तो कह रहा है कि नाम इनपुट करो, इनपुट तन्वी, गुड इवनिंग. तो this is what, this inside the calling, this is called argument. This is called AR argument. This is what parameter. The different terminology बस there, बाकी काम तो सेम ही है. पैरामीटर,
ठीक है. Sometime, some places, you can also see कि this is called argument, this is called parameter. But the right way, the right thing is, when we define a function and we pass any variable here, that always called parameter. But when we call the function and we input some value, some variable, that is called argument. So inside the function calling, when we call the function, we pass anything inside the function parenthesis. This is called parenthesis or round bracket. Okay, inside it, that is called the argument. When we define a function inside the parenthesis, whatever we defining any variable, they are called the parameters. Is it clear? ठीक है. Next. So parameters are what? Are the inputs to the function. If function contains parameters, then at the time of calling, compulsory we should provide values, otherwise we will get error. ठीक है. For example, if suppose inside the function I use a parameter, but the time of calling I'm not passing anything, immediately it generate error. The error is one missing one required positional argument name. कह रहा है कि भाई एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपने देना था, वो क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपने एक आर्ग्यूमेंट देना था जो कि आपने नहीं दिया है. ठीक है. Next we have, let's suppose I have a function def. I want to print a square of a number. So I am passing a number here, and I want to print a square. So how can we do number into number? So I am calling this square. I am passing here 10. Now output will be 100. Okay. Again I required some, output will be 10,000. Good doubt? Now, one more terminology is there, return statement. What? Return statement. So instead of printing, I want to return the value from the function. So I just need return number into number. Okay. Then what happened? Right now, it will not do any output on the screen. It will return or not? प्रिंट स्टेटमेंट तो कोई है नहीं, डेफिनेटली कंसोल पर तो कोई आउटपुट आएगा नहीं. इज एनी प्रिंट स्टेटमेंट देयर? नो प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर. सो इन दैट केस we get the output on the console? No, we did not get the output of the console. Then how can we get this value? So do whatever the value returning by the function, this function returning some value, how can we hold? Just like this. So what function returning? We hold inside the res variable, and after holding that value, we can print the value. Okay, this is some another way, another approach, that instead of sometime maybe this requirement, this function printing the result, maybe this function printing the result, like number, ऐसा भी पॉसिबल है ना. ठीक है. एंड दिस फंक्शन रिटर्निंग ऑल्सो. सो दिस इज नॉट नेसेसरी टू प्रिजर्व दैट वैल्यू, कि वट एवर द फंक्शन इज रिटर्निंग, this is not necessary to preserve the value. We maybe some requirement we use this. So they are the two way. Either we can print
I can either we can print the output from the function body, or either we return from the function and and hold inside some variable, and after holding that value we can print it. Okay, why? What is the next highly requirement of the written statement? We discuss later. We just using a very basic concept right now. Okay, so how we can return value from the function? Just return, and any value you can. Suppose this function returning this, and I am returning true. This is also possible. I there is no meaning of this return statement, but still we can print. We can return 100 and true. Let's suppose understand something. Def def mobile valid mobile. आई एम क्रिएटिंग ए फंक्शन वैलिड मोबाइल, ठीक है, एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल I input a mobile number and I'm checking if length of mobile equal हो 10K, then return, else return false. I call this function valid mobile and passing some number, and this function returning something. ठीक है, आउटपुट में मुझे कुछ, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग, राइट, एंड आई एम स्टोरिंग इन अ वेरिएबल वैलिड, ठीक है, आई एम टेकिंग इफ वैलिड इक्वल हो किसके, ट्रू के, ठीक है, तो प्रिंट स्टोर मोबाइल नंबर इन डेटाबेस। अभी तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, मान लेते हैं हम कोई ऐसा कोड लिख दें जिससे कि वो हमारा नंबर किस में स्टोर हो जाए, डेटाबेस में स्टोर हो जाए, एंड else show the user not a valid number, not a valid। यहां पर मुझे इस फंक्शन का काम सिर्फ मोबाइल नंबर वैलिड कराना है। अगर यहां पर मैंने एक फंक्शन डाल दिया कि भाई मोबाइल, अगर ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, तो ये ट्रू फॉल्स अगर मैं यूजर को इनपुट शो भी करा दूं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जैसे अगर ये ट्रू हो तो इस ट्रू हो तो इस मोबाइल नंबर को क्या करे, डेटाबेस में स्टोर करा दे, नहीं तो यूजर को क्या दे दे, मैसेज दे दे। ओके सम, हाँ, ठीक है, तो स्टोर मोबाइल नंबर इन डेटाबेस। अगर बाई चांस ये मोबाइल नंबर कम होता या ज्यादा होता तो क्या करें, नॉट ए वैलिड नंबर, ठीक है। तो मे बी सम रिक्वायरमेंट, अभी तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है, लेकिन यहां पर मुझे वो कोड लिखना है जिससे मेरा नंबर मोबाइल किस में सेव हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा किसी एप्लीकेशन पे आपने रजिस्टर्ड किया, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया तो आपने उसको रजिस्टर्ड हो जाएगा, लिखा जाएगा योर लॉग इन इज सक्सेसफुली। नहीं तो वहां पर क्या आता है कि नॉट ए वैलिड नंबर या ओटीपी नहीं आया, री रजिस्टर्ड अगेन। तो मे बी सम रिक्वायरमेंट वी रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न कैसे करना है, आई थिंक दिस इज द, यू हैव द बेसिक आइडिया हाउ टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। नहीं नहीं, ये तो मैंने पूरा एक एप्लीकेशन बना दिया कि अगर भाई ये मुझे करना है तो कैसे, मैं जो नंबर मोबाइल नंबर वैलिडेट कराना है तो ये कैसे कराना है। नहीं, यहाँ तो ये तो ऐसे मैंने एक रिक्वायरमेंट थी ना इसमें इस कोड की कि बाई चांस अगर ट्रू रिटर्न करे तो ये काम करे, फॉल्स रिटर्न करे तो ये काम करे, तो कोड की रिक्वायरमेंट है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं, अभी क्या होगा,
अगर हम यहाँ पे इसको, हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर ये 10 नंबर हो तो ये वाला कोड यहीं पे डाल दो, यू वांट टू से दैट, है ना। देखो क्या होगा कि यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं हर काम के लिए, छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि अब अगर ये मुझे सिर्फ किस कभी मोबाइल नंबर से वैलिडेट कराना है, उसको स्टोर नहीं कराना, सिर्फ वैलिडेट कराना है सम टाइम। अगर हम यहाँ पर इसको डेटाबेस में स्टोर करने का कोड लिख दिए तो क्या होगा, वो हमेशा डेटाबेस में उसको स्टोर करेगा। मे बी यूजर एज ए गेस्ट आ रहा है, तो मैं उसे लॉग इन करने की परमिशन तो दे रहा हूं, लेकिन मैं उसे डेटाबेस में स्टोर नहीं करना चाहता, तो सिर्फ वैलिडेट कर रहा हूं लेकिन डेटाबेस में स्टोर नहीं करना है। तो यहां पर क्या है कि इससे मुझे ट्रू और फॉल्स मिल रहा है। अब इस ट्रू और फॉल्स में मैं नंबर ऑफ एक्शंस करा सकता हूं। यहां से मुझे वैलिड पे देखो, एक एक ऑप्शन मैंने डाल दिया कि प्रिंट स्टोर इन डेटाबेस, ठीक है, स्टोर इन डेटाबेस। somehow some other reason मैंने एक और कंडीशन लगाई, तो कि अगर ट्रू हो, ठीक है, ट्रू हो तो गिव सम मैसेज कांग्रेट, ठीक है, CONGRT कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड नॉट ए, या फिर प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। अब ये काम मैं अलग अलग टाइम पे करना चाहता हूं। अगर ये कोड मैंने यहीं पे लिख दिया तो ये एक एक टाइप के लिए फिक्स हो जाएगा, जबकि मुझे सिर्फ इससे क्या कराना है, मोबाइल नंबर वैलिडेट कराना है। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो एन नंबर ऑफ काम मैं कुछ करवाना चाहता हूं, फॉल्स रिटर्न करता है तो मैं कुछ और काम करवाना चाहता हूं। अब मैं इस रिजल्ट से एनी नंबर ऑफ टास्क कैन परफॉर्म। लेकिन अगर यहां पे हमने ये फिक्स कर दिया, मे बी ये ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, या ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे अलग काम कराने नहीं है तो मैं यहीं पे लिख दूं, ठीक है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे कि भाई मुझे और भी काम कराने हैं, तो मैंने क्या किया, उसको रिजल्ट को प्रिजर्व करके रख लिया कि मुझे सिर्फ इतना करके दे दो, बाकी मैं जो जो यूज करना है मैं कर लूंगा। अब इसमें हमने ये कि वेरिएबल एबिलिटी है, हम्म। अब यहाँ पे ये एक्शन हो जाएगा, हम्म। तो मतलब ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है। हाँ आएगा, लेकिन ये जस्ट ऐसे एग्जांपल ले लिया है, लेकिन इसको प्रॉपर इफ एल्स के अंदर डाल के प्रॉपर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर ये होंगी। भी ट्रू होगी, ये भी ट्रू होगी। हाँ, तो वो तो एक बार रिजल्ट आ गया ना हमारे पास, तो मैंने एक टास्क ये परफॉर्म करा लिया, ऐसे मान लिया, फिर एक कोई दूसरा टास्क यहाँ परफॉर्म करा लिया, तीसरा टास्क मैंने और कुछ परफॉर्म करा लिया बेस्ड ऑन सम कंडीशन। यहाँ पे चेक करा दिया कि अगर यूजर हमारा गेस्ट है, यहाँ से यूजर का हमने कहीं और से कोई दूसरा दूसरा मैंने यूजर से इनपुट भी करा लिया, कि जैसे यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया डेफ डेफ यूजर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया, इनपुट करा लिया, इनपुट, ठीक है, एंटर योर टाइप, मतलब गेस्ट और 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 ओल्ड यूजर, ठीक है, ओल्ड यूजर गेस्ट है, गेस्ट के लिए जी इनपुट कर दे और ओल्ड यूजर के लिए ओ इनपुट कर दे। ये हमने करा लिया एक काम। तो मान लेते कि यहाँ पर हमने कर लिया यूटी के अंदर, यूजर टाइप के अंदर, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको रिटर्न करा दिया, रिटर्न यूटी, यूटी का स्टेटस रिटर्न करा दिया। अब यहाँ पे हम ये चेक करा रहे हैं, अगर वैलिड ट्रू है एंड यूटी हमारा इक्वल इक्वल है किसके, जी के, या स्मॉल जी के, या यूटी इन है किसके, यूटी इन है किसके, जी के, तो हम यहाँ पे कुछ दूसरा काम परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई कोशिश ये की जाती है कि अगर कोई फंक्शन हम बना रहे हैं तो उस फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करें, मल्टीपल चीजें वहां पे परफॉर्म ना करें, ठीक है। उससे क्या होगा, फंक्शन हैवी भी हो जाएगा, और मान मान लेते हैं कि उस फंक्शन के साथ वो काम हमें नहीं करना था, तो वहां पे वो फंक्शन हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जनरली देखो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में क्या होता है कि एक एक फंक्शन है स्पेल चेक,
है ना, स्पेल स्पेल चेक, ठीक है। तो स्पेल चेक कब कॉल होता है, कहां कहां पे कॉल होता है? स्पेल चेक जब कॉल होता है जब आप टेक्स्ट टाइपिंग कर रहे हो, जैसे कीबोर्ड का लेआउट चेंज हुआ नंबर में, है ना, तो वहां पर तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो कि दोनों लेआउट में अगर हम स्पेल चेक कर दें, कॉल कर दें, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन तो हैवी वेट हो जाएगी ना, वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उसकी कॉल कराने की। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, स्पेसिफिक रखा, हमने मैसेज टाइप करना है उस जगह पे कॉल करा दिया, हमें टेक्स्ट टाइप करना है व्हाट्सएप पे कॉल करा दिया, हमने मल्टीपल जगह पे उसको कॉल करा दिया, जैसे ही लेआउट चेंज हो वहां पर हमने उसको कॉल नहीं कराया। ठीक है, तो स्पेसिफिक रखा जाता है फंक्शन को, ताकि हम एक तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी ना हो, या फिर जहां पर रिक्वायरमेंट ना हो वहां पे यूज ना करें, जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो लाइट वेट रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मे बी स्ट्रॉन्ग चांस some innocent people are there, so they have a doubt, like, sir, if I want to print hello, okay, if I want to print hello 5 times, then what I do, def message, and I do this, then what happens, and I call message message message, I can call, ठीक है, 3 times I want to print, so 3 times hello will be printed. So some, you can have doubt, sir, what is the requirement to create a function we can do in 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 range, and I do 5 and colon print hello, print hello, ठीक है। why you why you creating this more concept, it can be possible, just print hello 5 times, it's very easy task, okay. But listen one thing, let's understand, I write this function f, I write this function, and here I call this function some way, and after calling this function I have too much code here, some code is there, then again I require this function, I call this function, then some more code is there, some more code there, okay, I call this function, possible or not? Happily possible. So we can, whenever we required, we can call it. Here I call 1 time, here I call 2 time, here I call 3 time, ठीक है। if और मान लेते हैं this function have at least 100 lines of code, ठीक है, 100 lines of code, ठीक है, 100 lines of code, then this function also have 100 lines of code, 100 lines of code, this also, but I use there, I use this, ठीक है, I have some code again, I have some code again, can I use this 100 lines without writing this code? कि मुझे ये पूरा यहां पे लिखना पड़ेगा ना, इज इट पॉसिबल कि मैं एक यहां पे बस कॉलिंग करूं और ये पूरा कोड जो 100 लाइन इसके अंदर लिखी हुई है ये कॉपी होके मेरी यहां पर आ जाए? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। भाई फॉर के अंदर हम हमने जो लाइंस लिखी हैं वो पूरा कोड मुझे वापस लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट या लिखना पड़ेगा, बट फंक्शन में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक बार कोड लिखा, wherever I require I just call the function and same code will be executed. तो फंक्शन फॉर लूप नेवर रिप्लेस फंक्शन, अगर रिप्लेस कर सकता तो पाइथन पीपल वाई क्रिएट फंक्शन कंसेप्ट, इज दे क्रिएट? डेफिनेटली नॉट, राइट? सो फॉर लूप कैन नॉट रिप्लेस द फंक्शन, द रीजन, यू गेट द रीजन? ठीक है, समझ में आया क्यों? भाई अगर मुझे आफ्टर ए 10-20 line, after the 20 lines I required these 100 lines, so how to call these 100 lines, I need to copy these again, ठीक है, or the better approach is
def some code, f is a function there, I write this for loop inside the function. Wherever I required, I just call right. So function never replace loop and all. देखने में आसान लगता है कि सर 100 टाइम यही कराना था तो इसी फंक्शन फॉर लूप को कॉल कर सकते थे, बट व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड ए फंक्शन एट अ डिफरेंट लोकेशन, फॉर लूप काम करता है एक ही प्लेस पर आपको एक काम रिपीट कराना है, रीयूजेबिलिटी हो रही है लेकिन एक ही प्लेस पर। लेकिन जब आपने मल्टीपल प्लेसेस पर या अलग अलग लोकेशंस पर फंक्शन को कॉल कराना है या सेम कोड को रीयूज करना है, देन लूप इज नॉट अ चॉइस। इसमें जैसे हमने वर्किंग का कुछ भी हम एक ही मैसेज जैसे लिखा, उसके हम कुछ भी डाल सकते हैं हर मैसेज पे। नहीं डालते हैं दोबारा बोलो। मतलब कुछ भी डाल कुछ कर सकते हैं। जैसे हम इस मैसेज पे हम एक मैसेज लगा के कुछ भी चेक हाँ हाँ बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल, हमें वो कुछ शॉर्ट बिल्कुल चेक करना है, बिल्कुल वाइल बिल्कुल लूप लगा दिया किसी बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ भी करा सकते हैं। एक सिंपल सा और फंक्शन पढ़ते हैं, एक और कोड करते हैं। डेफ एक फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल समझते हैं? फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे मेरे पास कोई नंबर है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों? 5 का फैक्टोरियल होगा 120। निकलेगा कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हालांकि 1 की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक ही काफी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फैक्टोरियल, ठीक है। एंड हाउ कैन वी डू दिस? जस्ट फैक्ट एन, तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया, यहाँ पे हमने कर दिया वाइल वाइल एन एन ग्रेटर हो किससे? ग्रेटर हो 1 से, ठीक है। तो क्या करे? f इक्वल टू एफ इंटू एन कर दे, बस इतना ही करना है। f इंटू एन कर दे एंड n इक्वल टू n माइनस 1 कर दे एंड f की वैल्यू हमने यहाँ पर कर दी f इक्वल टू 1, ठीक है। बस इतना ही करना है एंड फाइनली रिटर्न रिटर्न को रिटर्न कर दे। देखिए कैसे होगा। फैक्ट यहाँ पे मैंने पास किया 5, 5 का मैंने फैक्टोरियल क्या बताया था? 120। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमने रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर करें और फाइनली क्या कर दें, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा दें, ठीक है। आई रन 120। ऐसे ही मैंने 3 का फैक्टोरियल क्या निकलेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू जा 6, क्या आएगा? 6, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दूं, पॉसिबल है ना? डायरेक्टली जो मैंने फंक्शन बनाया उसको प्रिंट के अंदर डाल दूं, ये डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक बहुत सारे नंबर्स हैं सर, आई वांट फॉर आई इन रेंज, मेरे को मेरे को 10 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। सबका फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं क्या किया, इस फंक्शन को डाला लूप के अंदर और यहाँ पास कर दिया आई, ठीक है, 1 कॉमा आई, तो क्या होगा? सबका फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। मैसेज डाल दिया फैक्टोरियल ओ सी टी CTOR, factorial of is dot format I comma, बस इतना ही करना। Factorial of 1 is 1, factorial of 2 is 2, 3 of 6, 4 24, 5 का 120, 6 का 720, 8 6 का 7 का 8 का 9 का, कितनी का भी कर सकते हैं? 9 का 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना ही आएगा, ठीक है। अब आप इसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, भाई आपने जाना है कि मेरे को तो 10 तक के सारे फैक्टोरियल दे दो, 10 तक के सारे फैक्टोरियल दे देगा, ठीक है। अब देखो इतने सारे फैक्टोरियल निकाले, ये कोड बार बार यूज हो रहा है, सिर्फ इतना कोड है, ये यही कोड यूज हो रहा है। अब यही काम अगर हम नॉर्मली किसी तरीके से करते तो क्या होता?
कि ये कोड को मुझे 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग हर बार लिखना पड़ता है। बट फंक्शन से क्या हुआ, ये मुझे कोड बार बार यूज करना है, मुझे पता है ये वाला कोड है, बस यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी है, जो भी वैल्यू आई यहाँ पे वैल्यू देता चला जाएगा, रन करते गया। ये कोड समझ में आ रहा है ना। आई की वैल्यू 11 1 to 11 जाएगी, तो आई को फर्स्ट टाइम 1 मिला, ये मैसेज गया फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू प्रिंट की मैंने, तो क्या है 1 इज, और फैक्ट के अंदर मैंने 1 डाल दिया, तो 1 किसके पास जाएगा, एन के पास जाएगा, आई ने उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और एफ से क्या करा देगा, रिटर्न करा देगा, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है हमें। ठीक है, इसलिए क्योंकि एन की वैल्यू तो मान लेते हैं कि 5 जाएगी, तो फर्स्ट टाइम 5 से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 इनपुट की, ठीक है, आई की वैल्यू क्या गई, यहाँ पे 3 गई, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, f की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो 1 इंटू 3, तो किसको जाएगा, f को जाएगा, 3 चला गया। फिर n की वैल्यू एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वैल्यू निकल के आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऐसा है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस चली जाएगी, कहां तक जाएगी, जब तक ग्रेटर देन 1 हो। हालांकि इक्वल भी कर सकते थे, लेकिन आउटपुट सेम आएगा। 1 की मल्टीप्लाई अभी नहीं हो रही है, क्योंकि हम ग्रेटर चला रहे हैं। अगर हम इक्वल कर देंगे तब भी आउटपुट सेम हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब सेम है, तो लॉजिकली उसको करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ फिर ठीक है, let me show you one thing. Let's suppose def 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 f and some pass or some, like right now I am not giving the definition, I don't want to give the definition, कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, फंक्शन बन जाएगा। तो इन दैट केस इफ आई कॉल f, if I call f, so what will be the output, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। In that case, is any return statement there? Is not. No return statement. If there is no return statement inside the function, function return none. क्या return करता है function? None. ठीक है? If we are not returning any value from the function, function will return none. If suppose I am returning something, so that value will be printed. Return 10. So it will print 10 on the screen. But if there is no return statement, or just I am providing any print statement, so I am providing hello, तो console पर तो hello आएगा, but is I am using any return statement? No. So it will return hello none. None why? Because मैं यहां से इसकी वैल्यू को रिटर्न वाली वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूं, यानी कि f इक्वल टू मैंने यहां पे ले लिया सम x वेरिएबल, और मैं x को प्रिंट कराना चाह रहा हूं। तो x तो कुछ भी नहीं है ना भाई, फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल में ये इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट है, हेलो प्रिंट हो जाएगा, बट फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, वो x के पास आएगा, और x अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो इट विल रिटर्न नन। ठीक है, ऐसे ही अगर बच्चों आप प्रिंट फंक्शन का देखो, मैंने डाला प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन से हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी हेलो, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, हमने एक्स में स्टोर करा लिया, ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि प्रिंट भी एक फंक्शन है। तो प्रिंट क्या रिटर्न करता है, प्रिंट भी नन रिटर्न करता है। हेलो तो प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट फंक्शन के अंदर जो डेफिनेशन लिखी गई होगी वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ऐसे ही एक दूसरा समझते हैं, ऐसे हमारे पास एक लेन फंक्शन है, मान लेते हैं लेन भी है, एंड आई एम पासिंग हेयर हेलो, ठीक है, हेलो, and I'm storing the x. What len function return? Len function return whatever the string you pass inside it, the length will be written. So it will return 5. नन नहीं आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, नन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या रिटर्न कर रहा है ये, सम लेंथ इज रिटर्न। ठीक है, ऐसे ही इनपुट फंक्शन के सामने आप क्या लेते हो, वेरिएबल लेते हो ना, क्या लेते हो, जैसे नेम इक्वल टू इनपुट, ऐसे लेते हो ना, बिकॉज जो भी हम कंसोल से इनपुट करते हैं वो हमें क्या करता है, इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर करा देता है। तो जो भी हम कंसोल से इनपुट कर रहे हैं, कीबोर्ड से हमने इनपुट किया, इनपुट फंक्शन ने स्टोर किया, और हमारे प्रोग्राम में लाकर उसको क्या करा दिया, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अगर आपने ये वेरिएबल नहीं लिया तो इनपुट तो होगा, बट आपने वो जो रिजल्ट है, जो इनपुट आपने करवाया है, वो आपने कहीं प्रिजर्व ही नहीं किया।
आपने प्रिजर्व ही नहीं किया कहीं, ठीक है। चलिए, so this is the some basic idea about the function. What is the parameter, what is the argument, how we can return the value from the function, ठीक है, and why function is required, we have completely discussed. Okay, and tomorrow we will discuss returning multiple values from the function, types of argument. We have a four type of argument: positional, keyword, default, and variable. Okay, so all four types of argument we will discuss. Okay, any question, class? Okay.